To the people of India, whose representatives we are, we make appeal to join us with faith and confidence in this great adventure. This is no time for petty and destructive criticism, no time for ill will or blaming others. We have to build the noble mansion of free India where all her children may dwell. I beg to move, sir, that it be resolved that after the last stroke of midnight, all members of the Constituent Assembly present on this occasion do take the following pledge. At this solemn moment, when the people of India, through suffering and sacrifice, have secured freedom, I, a member of the Constituent Assembly of India, do dedicate myself in all humility to the service of India and her people, to the end that this ancient land attain her rightful place in the world and make her full and willing contribution to the promotion of world peace and the welfare of mankind. Members who are not present on this occasion do take the pledge with such verbal changes as the President may prescribe at the time they next attend a session of the Assembly. I beg to move, sir. तो समझ में आया? What was the speech all about? What was the speech? आवाज आ रही? It's about freedom. When was the speech given? Who gave the speech? May please no. Let me unmute you also. One minute. Hey, President of India did not give the speech. Who gave the speech? Jawaharlal Nehru. Jawaharlal Nehru. Who was Nehru at that point of time? Prime Minister. Prime Minister. Prime Minister. Okay. So, did he become the Prime Minister at that point of time? Yes. No. 14th August. When did our constitution came into existence? 26 January 1950. 1950. The speech was given on 14th August 1947. He was not Prime Minister at that point of time. He what did he say in that speech? As I, member of the Constituent Assembly, बताया उन्हें. He never said कि I am the Prime Minister. I, member of the Constituent Assembly. Please सुने बराबर concentration से. Yes, sir. So please make sure you are what you can say. एक बार फिर से देखो वो बाद में. So I want this person who is at fireflies.ai. Can you please unmute yourself, please? Okay, anonymous Nawaz. Nawaz or Rawaz? Nawaz, I think. Okay. So who is it? Firefly? Mr. Mir कुछ नाम है. ठीक है. Okay. So let us start our class today. How many of you have read today's newspaper? What the first editorial is all about?
Can someone read, please? Current affairs. Please read. Ikra, clear? Yes. Please read. Yes, sir. Current affairs. Current affairs, regional, national, and international importance, editorial analysis. Please read the heading first. What is the heading? Jim by O'Neill. brick. Brick by brick. What is a Brick. brick by brick? ईंट के ऊपर ईंट रखना। ईंट के ऊपर ईंट माने दीवार ईंट के ऊपर ईंट एक एक ईंट से बनती। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज रीड हियर। जो ब्रिक्स है, दिस इज द ग्रुपिंग, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर इंटरनेशनल इवेंट्स। ठीक है, ओम टीम जिम नील गेव दिस टर्म ब्रिक इन 2001। जब शुरू में जब ये ब्रिक बना था, इट वाज ओनली ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना, and later South Africa came in. So when is the first time this brick was given? The name was given 2001. 2001 by whom? Jim O'Neill. Jim O'Neill. Next you have और recently कब क्या हुआ? There is a meeting 14 BRICS 14 summit. BRICS summit. Who hosted it? China. China. Offline or online? Online, virtually. ऑनलाइन। ठीक है, तो बड़े बड़े लोग हमें ऑनलाइन ही बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो जिसको हु आर वेरी फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग उनको हो गया वर्चुअल आने से, जा ही नहीं सक रहे बाहर। नेक्स्ट, Concluded on June 24. सो कब खत्म हुई है? जून 24। आज क्या है? June 25. जून 25। तो कल खत्म हुई, आज न्यूज में आ गया। सो क्या है, पढ़िए। Block of 5 disparate countries. So what Brazil, what are disparate countries? What is a disparate? different. Participated. Essentially different in kind. अलग अलग है। Yes. आप पानी और तेल को ऑमलेट कर सकते हैं? नहीं sir. That is disparate. ठीक है, so पूरे disparate country है, लेकिन अपनी अपनी सहूलत के हिसाब से आके मिल गए। पूरों में differences भी है, और जब जरूरत रहती लड़ते भी, जब जरूरत रहती एक साथ भी बात करते। जिन्होंने disparate countries. What are the disparate countries? Brazil, Russia, India, China, and South Africa. So Brazil, Russia, China, and South. What is the capital of Brazil? Rio de Brazil capital. Janeiro. Rio de Janeiro. What is the capital of Russia? Moscow. Moscow. India capital क्या है? Moscow. Delhi. India का capital क्या है? Delhi. Delhi. China का Beijing. Delhi is the capital of India. Delhi. New New Delhi. New Delhi. New Delhi. New Delhi is the capital of India. Delhi is the UT. New Delhi is the capital of India. China का capital? Beijing. South Africa के कितने capitals है? 3 sir. 3-4. 3. 3 sir. So कौन last से I कौन से? remember 3. कौन से कौन से? Johannesburg. Johannesburg, Pretoria. जोहान्सबर्ग किधर है भाई? मेरे क्या मालूम? How many states? How many capitals are there? Johannesburg South Africa में है। Capitals क्या है? Capitals का नाम बोलिए। Please mute yourself. देखो मेरे को पूरों को म्यूट कर देना पड़ता फिर। It's your responsibility that when you are not speaking, please make sure you are on mute. What is the capital names, please? Cape Town, Pretoria. Cape Town, Pretoria, and
Bloemfontein. Bloemfontein. These are the three capitals. Clear? If possible, please write in the, those are using the desktop, they can write in the comment section what are the different three capitals. Okay. One is the capital Cape Town, Pretoria, and Bloemfontein. There are three capitals. This was copied by which of the following state in India? ये आइडिया क्या है? तीन कैपिटल्स का एक स्टेट फॉलो कर रहा है एट प्रेजेंट. Andhra Pradesh. आंध्र प्रदेश. कौन से कितने कैपिटल्स है आंध्र प्रदेश के अब? अमरावती, कर्नूल, 3 है सर उन लोगों के भी. कौन से? एक तो अमरावती है, लेजिस्लेटिव कैपिटल है अमरावती. कर्नूल इज द कर्नूल. जुडिशियरी कैपिटल. वाइजैक, Vizag is what is the capital? लेजिस्लेचर किधर बैठता? अमरावती में. जुडिशरी किधर बैठती? कर्नूल. कर्नूल में. एग्जीक्यूटिव किधर बैठता? वाइजैक. वैजाग में. ठीक है. So let us come back to our BRICS. Please read next. Please read. 14th BRICS Summit hosted by China concluded on June 24th. Block of 5 disparate countries: Brazil, Russia, India, China, and South Africa. उसके बाद First summit 2009. तो कब हुआ फर्स्ट समिट? समिट 2009. माने मीटिंग. समिट मीन्स मीटिंग. उसके बाद Ekaterinburg, Russia. सो फर्स्ट उसके समिट. बाद सर फर्स्ट समिट यहाँ पर हुआ. यस यकतेरिनबर्ग रशिया में 2009 में फर्स्ट रशिया. समिट हुआ. फिर उसके बाद में देयर वाज अ समिट 2014 में. 2014. 2014 में. तो क्या आया 2014 से? एनडीबी एस्टैब्लिश हुआ. व्हाट इज एनडीबी? न्यू डेवलपमेंट बैंक. Wait a minute. एंड न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में बात दिया हुआ. जस्ट प्लीज रिमेंबर दैट न्यू डेवलपमेंट बैंक वाज created in 2000 was conceptualized in 2014 and it came into existence in 2015. आइडिया सोचे थे 2014 में बट उसका पूरा स्ट्रक्चर में आया 2015. ठीक है. नेक्स्ट प्लीज. व्हाट इज आवर क्या बोले? सर सेकंड समिट कहाँ पर हुआ सर? अबे देखो मैं डीप में नहीं गया इसके बारे में. मैं जो अच्छा. एडिटोरियल जो इम्पोर्टेंट है Okay. वही लगाया बस. अब डीप में गए तो उसको 1-2 घंटे लग जाते उसको ब्रेक कुछ. सर एनडीबी क्या है? न्यू डेवलपमेंट बैंक आ रहा. नेक्स्ट आ रहा है वो. नेक्स्ट है उसका. अब अपना पीएम बिलवर्ड पीएम क्या बोले सुनो पढ़ो. PM Modi on June 23rd said as global approach to global governance. फैन डालो जी, दम्मी हो रही मैं तू. प्लीज म्यूट. आप उधर बात कर रहे हो तो प्लीज म्यूट योरसेल्फ. इट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी. PM Modi on June 23rd said BRICS has global approach to global governance. ब्रिक्स हैज ग्लोबल अप्रोच टू ग्लोबल Governance. गवर्नेंस. माने ये ऐसा है कि इसके बगैर ग्लोबल वर्ल्ड चल नहीं सकता. ब्रिक्स के बगैर इंडिया, चाइना, रशिया, साउथ अफ्रीका एंड और कौन सा बच गया? Brazil. ब्राजील. तो ये दे आर द इमर्जिंग नेशंस. ठीक है. ये दिस ब्रिक विल एक्ट एज ए ग्लू टू द गवर्निंग ऑफ द होल वर्ल्ड. दैट इज ग्लोबल गवर्नेंस. अभी लोगों के क्या क्या है? इन लोग कई को आए साथ में आए कई कुल साथ में क्या क्या अलाइन इंटरेस्ट है इन लोगों के? Climate change, development projects, space. फाइनेंसिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स. फाइनेंसिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स. माने एक खाली चाइना को मिला लो, पूरों का पैसा चाइना के पास और अलग अपने पास डेमोक्रेसी है. सो ऑल दीज पीपल केम टुगेदर फॉर म्यूचुअल बेनिफिट्स. ठीक है. तो फाइनेंसिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स. सेकंड वन क्लाइमेट चेंज. climate change is not limited to one country or two countries. it is very vast. पूरे ग्लोब में फैला हुआ है. एंड खाली आप चाइना और इंडिया को ले लो. अगर इफ चाइना एंड इंडिया
today decides that we are not going to contribute to any global warming, आसानी से आधी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है देश। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? और थर्ड वन स्पेस कॉर्पोरेशन। स्पेस कॉर्पोरेशन। तो अब ये स्पेस कॉर्पोरेशन माने जो एसएनटी का आ गया इधर, तो इट इज लाइक दिस BRIC is going to send a to make a constellation of satellites with respect to remote sensing, जो अपने को काम आता ज्योग्राफी टोपोग्राफिकल स्टडीज करने के लिए। ठीक है, रिमोट सेंसिंग, रिमोट माने दूर, सेंसिंग माने आइडिया लगाना। ठीक है, so please read once again. What are the aligned interests of these BRICS countries? Financing Financing projects, Huh? climate change, space cooperation to And create space- a satellite constellation of remote sensing. For remote sensing. So समझ any doubt till here? No, sir. उसके बाद में पूरा खत्म होने के बाद में एक डिक्लेरेशन दिया जिसका मीनिंग क्या है? बीजिंग डिक्लेरेशन। एक समरी दिए क्या क्या डिसाइड हुआ बोल, उसका एक एक इट वाज वेरी वेरी लॉन्ग, उसमें से खाली एक पॉइंट निकाल के वो समझा दिया हमें क्या डिसाइड करे उन लोग। आखिर में बोलना, आखिर बोले क्या कि पूरे भाषण में दिए बाद में क्या बोले? Based on making instruments of global governance, तो ग्लोबल गवर्नेंस कैसी रहना, कैसी रहना? inclusive, representative, participatory. तो इंक्लूसिव रहना, सबको इंक्लूड कर लेते हुए चलना, लेके चलना सबको। अपने डायलॉग सुनते अपन घर में, लेके चलना बोल के सबको लेके चलना पड़ता। Yes. Yes, sir. सेकंड क्या है? रिप्रेजेंटेटिव, माने सबको रिप्रेजेंट भी करना, सबको लेके भी चलना, सबकी बात भी सुनना, और उसके बाद में Participate. भी करना। पार्टिसिपेटरी भी रहना। ऐसा नहीं है क्या खाली एक ही जना बोलते जा रहा और उन्हें मरते जा रहा, बाकी सब जने आराम कर रहे। इट शुड बी मेक बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस शुड बी इंक्लूसिव, रिप्रेजेंटेटिव एंड पार्टिसिपेटरी। आप गवर्नेंस आते तीन वर्ड याद रखिए। गवर्नेंस, हाउ एनी गवर्नेंस शुड बी इंक्लूसिव, रिप्रेजेंटेटिव एंड पार्टिसिपेटरी। तो उसमें फाइनेंसिंग, व्हाट इज द फर्स्ट अलाइनमेंट, अलाइन इंटरेस्ट? फाइनेंसिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो उसके लिए एक बैंक बनाए लोगों। कब आइडिया कब आया था? 2014 में आया था, और व्हेन डिड इट कम इनटू एग्जिस्टेंस? 2015 में। तो पढ़िए, न्यू डेवलपमेंट बैंक लॉन्च्ड इन A new New development Development Bank. bank. 2015. Next point. Has funded 30 billion worth projects in developing and emerging nations. Till now, it has funded $30 billion. $30 billion worth projects in developing and emerging nations. कितने साल हो गया बन के एनडीबी? 7 years. Almost 7 years. 7 साल में $30 billion का पैसा लगा दिए डेवलपिंग एंड इमर्जिंग नेशंस में। ठीक है, नेक्स्ट ये दो पॉइंट ही दिया हुआ है। आई एम रेस्ट्रिक्टिंग माय सेल्फ टू 2 points ओनली। तो प्लीज रीड नेक्स्ट। ब्रिक्स, BRICS points of contention. पॉइंट्स ऑफ कंटेंशंस माने अब ये बात क्या करते हैं आखिरी में बैठ के बात क्या करे ना, क्या बात करे? UN reforms and terrorism. यूएन रिफॉर्म्स एंड टेररिज्म। यूएनओ कब बनी थी? व्हेन डिड द यूएनओ कम इनटू एग्जिस्टेंस? 1945. 1945। उसके बाद दो, व्हाट आर द टू मेजर ऑर्गन्स ऑफ द यूएनओ? What are the two major organs of the UNO? Security Council and NATO. Security Council and General Assembly. General Assembly. UN General Assembly क्या करती? Issues solved for the terrorism or anything.
मीन्स इन लोग जनरल असेंबली जितने भी गवर्नमेंट के जो है ना प्रॉब्लम है वो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड का सॉल्व करती, ठीक है। उसके बाद में और यूनाइटेड सिक्योरिटी का क्या करती, यूएनएससी क्या करती, व्हाट डज द यूएनएससी डू? व्हाट इज यूएनएससी? फुल फॉर्म क्या है यूएनएससी का? United Nations Security Council. यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी Security Council. काउंसिल। उसका काम क्या है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का? To promote international peace and investigate into matters relating to terrorism. or Yes. war. और वॉर। तो यूनाइटेड नेशंस इट्स लाइक अ एग्जीक्यूटिव बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट पढ़िए उसके बाद। China, United Nations Security Council. China not in favor of permanent seat for India in UNSC. यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कितने कितने कंट्रीज के पास वीटो पावर है? 5. 5। व्हाट आर दोस 5 कंट्रीज? America, Russia, China, UK, France, and China. ओके, कौन से है? सो इज चाइना सपोर्टिंग आवर कैंडिडेचर? No. Because China knows that it is very very important to understand कि भाई it remains dominant in Asia. अगर इंडिया को एक बार मौका दो चढ़ जाती इंडिया, ठीक है। So it is very very important to understand. And one more thing, उसके बाद पढ़िए। China recently blocked the designation of Abdul Rahman. एक पढ़े थे अपन, एडिटोरियल पढ़े थे, रहमान मक्की का वो कर दिए, डेजिग्नेशन रोक दिए थे। लास्ट क्लास पढ़े नहीं पढ़े थे? Yes, sir. डेजिग्नेशन रोक देते, क्यों रोके थे? टू सपोर्ट द पाकिस्तान एट द इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, ठीक है। क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. नेक्स्ट You need Chalo. to scroll on. सो दिस एडिटोरियल इज ऑल अबाउट द ब्रिक्स। सो इतना ही दिया हुआ है, इससे ज्यादा वी नीड नॉट लर्न आल्सो Mention. मेंशन। इतना एडिटोरियल में है, सो आई एम रेस्ट्रिक्टिंग माय सेल्फ टू ओनली द एडिटोरियल पार्ट। सर वीटो पावर्स में 5 कंट्रीज है सर, 6 कंट्रीज हैं 5 कंट्रीज है सर। मे आई नो द नेम्स? देखिए, यूएस है, यूएसए है, यस। यूएसए जहां था यूएसएसआर आ जाता, दैट इज Okay. रशिया। रशिया, यस जहां यूके आता वहां फ्रांस आ जाता, सर। यूके एंड फ्रांस। यूके एंड फ्रांस। फ्रांस। अगर ऐसा इट इज सेड लाइक व्हेनेवर द यूके sneezes the France catches the cold। Yes. पढ़े थे स्कूल में? Alexander the Great story. So whenever the England sneezes, France catches the cold। और एक तो अपने ऊपर बैठे हुआ है, कौन बैठा हुआ है अपने ऊपर? China. चाइना। अच्छा, तो कितने कंट्रीज हो गए? 5 हो गए सर। 5। तो यूएस, Russia. यूएस, यूएसएसआर, यूके, France and China. फ्रांस, चाइना। फ्रांस। So these are the 5 कंट्रीज। ओके Countries सर। with veto नॉर्थ power. कोरिया नहीं आता सर, ये कोरिया कंट्री नहीं होता सर, साउथ कोरिया नहीं आता सर। रोक कंट्रीज है ना, दे आर द रोक कंट्रीज। सर साउथ कोरिया नहीं है ना? नहीं, नॉर्थ कोरिया इज अ रोक कंट्री, बट साउथ कोरिया क्या डेमोक्रेसी है ना। देखिए, व्हाई दिस वीटो पावर वाज गिवन टू देम? वीटो पावर आया कैसे? व्हाई डिड दे टेक द वीटो पावर? वीटो पावर इन लोगों को दिए कौन वीटो पावर? व्हाई डिड दिस the countries were selected for the veto power? यूएनओ। So because they are the founding members, sir. They are the founding members। और एक रीजन क्या है? They all were participants of World War II.
they are the participants of the World War II and they are the victors. They are the victorious people. ये याद रखना जरूरी है आपको, ठीक है? So please be remember, they were the victors. ठीक है? Small animation about BRICS. ठीक है? Powerful nations, the largest and most influential economy. It is of just 9 minutes. Please watch it. It is explains the complete BRICS history दिया हुआ है इसमें. So please make sure you are muting yourself all and listening. ठीक है? डॉक्टर के फॉर्मूले बताऊं मैं, ये नंबर को वो डन कर लेके जाओ. Or I'll mute everyone. So shall I start? Imagine an association between some of the world's most powerful nations, the largest and most influential economies all in one group. Perhaps they even hold annual summits in which they discuss how they cooperate to achieve their respective goals. Now imagine that the United States of America isn't in this group. In fact, neither is Germany, Japan, nor the UK. Confused? Well, don't be. Let me introduce you to the BRICS. So, who are the BRICS? The BRICS is a political and economic organization between 5 member countries formed back in 2009. In fact, the term BRICS is actually an acronym for the participating nations of Brazil, Russia, India, China, and South Africa. The organization was originally known as BRIC, since South Africa only joined in 2010, and as a result gave the organization a presence on the African continent. So why these nations and not Finland, New Zealand or Djibouti? Well, these countries are home to large emerging economies, with perhaps the exception of South Africa, and all of them have shown high rates of economic growth in recent decades, and are expected to emerge as future powers not just on a regional level, but also a global one. In fact, the term BRIC, then just Brazil, Russia, India and China, is believed to have been coined by a Goldman Sachs employee back in 2001 as a way to refer to these large emerging markets. But why do these nations get together? What's the point of this international organization? Well, let's find out. There are many different reasons that explain the desire for cooperation between the BRICS nations, and perhaps the most important though is that of influence. You see, almost all of the large international organizations worldwide have been created by Western economies, and allow Western nations to exert their influence through backing each other in economic and diplomatic confrontations. So, if you're a large emerging market that doesn't quite have the influence to sway the likes of the USA or the EU, then one solution is to team up with others, and that's how we've ended up with the BRICS. The BRICS organization, therefore, is a platform in which member nations can come together to cooperate and design their own framework, one that isn't heavily influenced by the Western powers. So perhaps you're now wondering, why should I care about some recently formed international organization that comprises some of the most populous nations on the planet? Well, let me tell you why. The BRICS nations combined are huge. In fact, if they were their own country, they would be by far the most populous state with almost 3.2 billion people in 2018. That's more than 9 times the population of the USA. And together, its economy in 2018 ranked alongside that of the USA and ahead of the EU with a staggering $20.5 trillion US.
all numbers surrounding the BRICS are impressive by nature of the group representing a sizable portion of the global population, and many have predicted that the BRICS nations will overtake the largest Western nations in the upcoming decades, both economically and politically, therefore being able to shape global governance as the 21st century progresses. So you may be wondering, what have the BRICS countries achieved so far? Where can their impact be felt? When it comes to cybersecurity, endorsement from IIT Bangalore on your resume could make all the difference that's needed. Ever since its first formal summit as a group of 5 nations in April 2011, the BRICS nations have shown their will to cooperate on a variety of issues, ranging from the need for a new global reserve currency, not dominated by these people, to the establishment of a new global financial institution, similar to the IMF and the World Bank. Up until now, the BRICS have been much more successful with the second of these issues, and as of 2014, such institution became a reality. The new global financial institution in question is the BRICS Development Bank, also known as the New Development Bank or the NDB. This new bank's primary objective is to fund infrastructure projects, and with an initial starting capital of $50 billion, it is definitely not a small-scale institution. Headquartered in Shanghai, China, the New Development Bank had already invested by March 2019 in more than 30 projects, with loans totaling more than $8 billion. And in addition to the NDB, the BRICS have also set up the BRICS Contingent Reserve Arrangement, or CRA, which is a framework intended to protect against global liquidity pressures. The idea being that many emerging economies go through periods of instability as they experience rapid economic liberalization, and the CRA offers a stable hand to protect against such market fertility by offering liquidity and precautionary instruments. All things considered, and given the relatively short lifespan of the BRICS group, the achievements that the 5 nations have made so far are quite impressive, so much so that other nations have expressed interest in joining the group. With South Africa formally joining the group in 2010, the idea that the BRICS members are set in stone is up for debate, and many other countries have been knocking on the door, such as Turkey, with its President Erdogan suggesting that the group could change its name to BRICS and allow his country to join. But perhaps the acceptance of South Africa in 2010 is puzzling in itself, with more populous and faster emerging economies in Africa such as Nigeria, Ethiopia and Egypt perhaps being better suited to assume the responsibility of being the group's presence in Africa. That said, whichever nation is invited or accepted to join the group in the future, it will most likely be another emerging economy and regional power, therefore leaving the door open to many countries such as Indonesia, Mexico and Nigeria. However, enlarging the group could cause more harm than good, as not all nations get along. This is evident even within the 5-nation group. What binds the BRICS nations together is the desire for more independence, influence, and not having to rely on Western institutions. However, there are also many differences that divide the BRICS nations, from their political systems to their relationships with the West. That said, perhaps the most divisive force within the BRICS nations is actually the relationship between its 2 largest members, China and India. You see, China and India aren't exactly best friends. They have conflicting territorial claims in the Himalayas, and in 2020 we have even seen conflict at the border between the 2 countries, resulting in military deaths, as well as some Indians boycotting Chinese firms. In addition, the Chinese have invested heavily in Pakistan in recent years as part of its Belt and Road Initiative, a move that India is not completely happy with. And as for India, its positive relationship with the USA is a cause of concern to the Chinese, since Chinese-US relations are spicy, to say the least.
So, such tangling of international relationships does not exactly create the fruitful relationship that China and India need to sustainably boost the BRICS cooperation, and without its two largest member states, there isn't much the rest of the group can do. The BRICS may not be an economic union, but as a result of their enormous size, both demographically and economically, they have the ability to play a significant role in the global economy in the coming decades, and therefore are definitely worth keeping an eye on. Recent tensions between China and India will no doubt slow down progress between the group in the short term, and as the group progresses throughout the 21st century, I'd expect its economic clout to grow and rival that of the Western Hemisphere as a whole. But divisions between the nations and their divided relationship towards Western countries may prove difficult for the group to overcome. Hi everyone, thanks for watching. So Samna, what is BRICS? Yes, sir. This was the short. So when did the South Africa join this group? 2010. sir. 2010. The New Development Bank is also known as BRICS. New Development Bank was also known as नाम था उधर. So remember. Shanghai. No. So it is available on the YouTube. You can watch it once again. So let us move on with the next pattern. So last पढ़िए. Last point. BRICS talk about respecting Sovereignty of member countries. sovereignty of member countries. पूरा उल्टा कर रहे. रशिया किधर अटैक करा? Ukraine. Ukraine. Is the Russia respecting the sovereignty of Ukraine? No. India, China किधर क्या बोलते हैं पूरे अपने सेटलमेंट बना के बैठा हुआ है? पाकिस्तान. अरुणाचल इंडिया में किधर बना के बैठा हुआ है पूरा अपना सेटलमेंट अपने घर बना लेके इधर बैठे हुआ है. रोड बना रहा हर चीज. लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश. लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश. So respecting the sovereignty of member countries is like paradox. एक बोल रहे एक exactly opposite कर रहे उसका. समझे? So this is your BRICS first editorial analysis. So NREGA working. Mahatma Gandhi NREGA. So please read. सर MG कहीं को हट गया इसमें सर? और महात्मा गांधी को ज्यादा याद नहीं कर रहे. महात्मा गांधी नहीं मिल रहा है इसमें. सब महात्मा गांधी निकाल. ओके सर. तो महात्मा गांधी माने बहुत बड़ा हो. Whenever you are referring to the complete name, complete act, we call it as Mahatma Gandhi National Employment Rural Guarantee Act. And whenever you are just talking about scheme, you call it as NREGA. ओके. क्योंकि जो क्या बोलते हैं MG कैसा प्रोनाउंस करेंगे? सर वो मनरेगा बोलते थे सर पहले. मनरेगा. अब वो आपकी मर्जी है. महात्मा रखना चाह रहे हो नहीं रखना चाह रहे. ठीक है. अब जो आर्टिकल लिखे हुआ है उसमें M हटा दिया लोग. हाँ सर वही. So I can't do anything. जो है वही लिखा. ठीक है. बढ़िया. It doesn't matter that much. अगर आप जब आंसर लिख रहे हैं तो नरेगा पूरा लिखो. When you are writing your answer, महात्मा गांधी हमेशा इंक्लूड करो. Next, please read. Please read. National Model Monitoring Software. First heading.
सबसे पहले हेडिंग पढ़ो, फिर आओ डेटा पे। To advent of absolute chaos in Narega. The advent of absolute chaos in the Narega. ठीक है, next. National module monitoring National mobile monitoring software. So please read, क्या है national monitoring software? It was launched in May 2021. So national mobile monitoring software which was launched in May 2021 21. by which ministry? Ministry of Rural Development. Ministry of Rural Development. उसका aim क्या है? Improving citizen oversight and increase transparency. So improving citizen oversight and increase the transparency in what? National Rural Development. National Rural Employment Guarantee Government Act, Guarantee Act. नरेगा वर्क्स। ठीक है, और ये जो ऐप को यूज करते हैं, जो इस्तेमाल करते हैं, जो अटेंडेंस मेजर करते हैं, लोग क्या बोलते हैं? नरेगा मेट्स। नरेगा मेट्स। तो आपको एक क्वेश्चन आ सकता, द कॉन्सेप्ट ऑफ नरेगा मेट्स इन द महात्मा गांधी नरेगा इज व्हाट? मानिए ये जो जितने भी लोग हैं जिसके पास स्मार्टफोन है, वो लोग क्या करते हैं? अटेंडेंस मॉनिटर करते हैं सबका। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज। Deployed by Narega mates, local women at panchayat level who are selected and to monitor Narega work sites. तो लोकल वुमेन एट पंचायत लेवल्स, माने जो जहाँ पंचायत है ना, आउटसाइड से नहीं आते, उधर के लोकल वुमेन को ये जिम्मेदारी दी है कि आप जो भी क्या बोलते हैं, वट एवर इट इज कमिंग, उन लोगों के अटेंडेंस ले लेके रखना स्मार्टफोन से, बायोमेट्रिक से। आजकल तो हर फोन में बायोमेट्रिक आ गया। यू हैव टू, इट लुक्स लाइक अ डिजिटल अटेंडेंस। नेक्स्ट। Major features of this app is real-time photographed, real-time geotagged attendance of every worker taken in each half of the day. Taken in each half of the day. अब आप स्कूल में अटेंडेंस कब लेते थे अपने को? फर्स्ट मॉर्निंग। फर्स्ट मॉर्निंग। इंटर में कब लेते थे? ओनली मॉर्निंग सर। Morning and मॉर्निंग ही afternoon. लेते थे ना? नहीं लिया नहीं सर। करे कोई? ये डिग्री में क्या हो गया सिस्टम? हर फैकल्टी अपनी ऐसा लेता था अटेंडेंस। Yes sir. Yes. तो इसमें भी क्या कर दिया, ये लेना है। देखिए ये दीज आर द गवर्नमेंट की बदमाशी है ये, कि अगर ये जो स्कीम है ना, ये इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि भाई सुबह से लेके शाम तक बैठना बोल के, अब जब आओ जब निकल जाओ, जितना काम करे उतना पैसा मिलता। लेकिन अब क्या हो गया, इसमें एक ही पर्टिकुलरली दोपहर में एक टाइम दे दिया जहाँ सबकी अटेंडेंस मार्क करना है, सब अपना अंगूठा लगाना है उसमें। ठीक है, तो इसका मेजर फीचर्स क्या है इसके? रियल टाइम, जब का जब मालूम होता, और फोटो के साथ न प्रेजेंट है नहीं है उधर, उसके अंदर जियो टैग, और कहाँ लिए उन्हें लोकेशन के साथ समझ में आता कि भाई किधर अटेंडेंस हुआ। एंड ईच एज, और कब ले रहे अटेंडेंस, ये सुबह ले रहे हैं, दोपहर में ले रहे या लास्ट में ले रहे? दोपहर में ले रहे। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आ सकते हैं। नेक्स्ट पढ़िए। Narega wages are calculated based on the amount of work done each day and do not need to. नरेगा के जो सैलरीज देते हैं, जो कितना काम करे, जितना काम उतना पैसा। ठीक है, इसके बाद Do not need to commit fixed number of hours. जो भी वर्कर्स है, मैं वो लोग क्या है 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे काम करना, बोल के ऐसा नहीं है कुछ भी। अपना आओ, अपने हिसाब से आओ, जितना काम कर सकते करो, उसका उन्हें पैसा ले लेके चले जाओ। लेकिन ये ऐप से क्या हो गया, अब अगर उन्हें 1 घंटा ही रहना है, 1 घंटा ही काम करना है, लेकिन फिर जाके वापस आना पड़ रहा, डबल लग जा रहा खर्चा। और एक बार अगर वापस नहीं आए तो दोपहर में उस दिन की सैलरी नहीं मिलती। तो इससे क्या हो गया, लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही कि भाई अगर आपने हमेशा मिनिमम लोगों को ऐसा हो गया कि दोपहर तक रुकना ही रुकना है, चाहे कुछ भी सूरत हो जाओ।
अगर आप नहीं रुके, it becomes your salary will not be credited on the day. और and there is no provision of manual attendance also. पहले रजिस्टर में लिखते थे, ठीक है, लेकिन आप रजिस्टर भी बंद कर दिए लोग. नेक्स्ट आता है आपका एडिटोरियल. नेक्स्ट प्लीज पढ़िए. Marking on the app mandates that workers are at work site the entire day, which causes difficulty for NREGA workers. Which causes difficulty for NREGA workers. Workers. समझ में आए? Yes, sir. तो ऐप से क्या फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा? फायदा है, नुकसान है? तकलीफ हो रही है या आसानी हो रही? तकलीफ. ओके, नेक्स्ट पढ़िए. NREGA proportion of women workers. कितना है फाइनेंशियल ईयर 2022? Financial year 2021 to 22, 54.7% and has been pivotal in changing working conditions in rural areas. So, workers participation कितना है इसमें 100% में से? 54.7%. 7%. कितना मेल पॉपुलेशन कितना है? 45.3%. 45.3%. ठीक है. नेक्स्ट अब चैलेंजेस क्या है पढ़िए. Stable network for real-time monitoring, especially in rural areas. अब now we are taking the class online. बार क्या होता, आवाज सही नहीं आती. Even in this area, in this urban area, we don't get the network right. कभी नेटवर्क नहीं आता, कभी ये नहीं आता, कभी वो नहीं आता, कभी लैपटॉप नहीं चलता, कभी स्मार्टफोन नहीं चलता, कभी स्मार्टफोन हैंग हो जाता. एंड यू हैव टू हैव अ गुड मेमोरी उसमें रहना है ऐप सपोर्ट करने के वास्ते. So there are many challenges and for the real time internet connectivity is must. अब दूर के खेड़े गांव में कहाँ रहेगा इंटरनेट? रहा भी तो कितना रहता, 2G 3G रहता, उससे ज्यादा तो नहीं रहेगा. अब यही अगर मेन टाइम पे जो अटेंडेंस दे रहा हूँ और जो इंटरनेट चले गया तो क्या होता उसका? वो दिन का अटेंडेंस ही नहीं मिलता. और उससे क्या हो जाता, सैलरीज में लेट हो जाते, सैलरीज या तो मिलते ही नहीं या तो लेट हो जाते. नेक्स्ट प्लीज. If not digitally, it will lead to loss of wages. It will lead to loss of wages. क्या है loss of wages और क्या है? नेक्स्ट पढ़िए. Difficulty for differently abled workers. Difficulty for differently abled workers. They are not just women. Differently abled workers भी प्रॉब्लम है उसमें. ठीक है. और क्लियर? NREGA mate. NREGA, please. One of the mandatory requirement to become NREGA mate is to have a smartphone, which many thousands do not have. Okay. Thousands. This creates disability. This creates digital disability. माने अगर आपके पास फोन नहीं है तो आप ये देखिए, जो जिसके पास जो नरेगा मेट है उसको थोड़ी ज्यादा सैलरी है, उन्हें मॉनिटर कर रहा ना, स्मार्टफोन हर से लेके अटेंडेंस दे रहा. अगर स्मार्टफोन नहीं है आपके पास तो क्या हो जाता है उससे? इट क्रिएट्स डिजिटल डिसेबिलिटी. और नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए. Smartphone owning men will be given preference of women who do not own smartphone. So smartphone owning men will be given preference of women who do not own smartphone. अब आप अपने घर में देख लीजिए, एक क्या बोलते हैं, मेल है, फीमेल है, हस्बैंड है, वाइफ है, किसके पास अच्छा स्मार्टफोन है? अपने घर में कंपेयर कर लो, दोनों का स्मार्टफोन है. Yes. तो किसके पास अच्छा स्मार्टफोन है? बड़ा वाला स्मार्टफोन किसके पास है? आपके पास है या हस्बैंड के पास है या वाइफ के पास है या मेल पर्सन के पास है या हस्बैंड के पास? और भाई के पास अच्छा फोन है या बहन के पास अच्छा फोन है? भाई के पास. दोनों के पास है सर. दोनों के पास भी अच्छा है. तो सबसे अच्छा कौन सा है दोनों में? नया मॉडल कौन सा है? बहन का. भाई का. भाई का है. तो इधर प्रॉब्लम आ गई, इधर ही प्रॉब्लम आ गई. अब नरेगा मेट किसको बनाते? भाई को. तो कितने ज्यादा सैलरी किसको मिलती? भाई को. तो इधर ही आपको डिस्क्रिमिनेशन मिल गया. अब आप गांव में देखो, आप
अब गाँव में किसको रहती है ज्यादातर, और लोगों के पास एक ही स्मार्टफोन रहता, घर में एक स्मार्टफोन, किसके पास रहता हो? अब्बा के पास। मेल। Head of मेल the के family, sir. हेड ऑफ द फैमिली के पास रहता, तो हेड ऑफ द फैमिली बच्ची को देते फोन, नो। वो वही घर का फोन भी वही रहता, तो कब Yes. ये वन 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 एक्शन फोन रहता हो। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, डिस्क्रिमिनेशन भी हो गया और डिसेबिलिटी भी इधर क्रिएट होगी। प्लीज रीड नेक्स्ट पार्ट 2। The app was launched No on pilot physical basis records. last year. Let me come to that point. Please read. The app was launched on pilot basis last year. The app was launched on pilot basis last year. पढ़िए। Last year. State used it voluntarily. State used The it। errors are evident from beginning. तो जब आप Voluntarily. लास्ट टाइम क्या बोलते हैं, लास्ट टाइम क्या करे थे, लास्ट ईयर पायलट बेसिस पे स्टार्ट करे थे, वॉलंटरी इस्तेमाल करो बोल के, क्या समझ में आ रहा बोल के, ठीक है, लोगों को जस्ट आदत दिलाने के वास्ते। लेकिन उसमें वो टाइम पे क्या है, इतने प्रॉब्लम आए कि व्हाट यू कैन से, इट वाज वेरी डिफिकल्ट, क्या भाई टेक्निकल ग्लिचेस है, ये है, बहुत ही क्या बोलते हैं प्रॉब्लम्स आए थे, और पूरे रिपोर्ट भी करे थे लोग, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी सही नहीं हुआ, फिर उसके बाद भी वो प्रॉब्लम सही नहीं हुए और रिपोर्ट करे, बाद में क्या होगा, गवर्नमेंट वैसी वैसी लॉन्च कर दी, ठीक है। नेक्स्ट प्लीज। The errors were evident from the beginning, but no corrective action was taken. No corrective action was taken. Next please. On May 13, 2022, despite errors, the MORD released. So scroll down the screen, please. Please read. On May 13, 2022, despite errors, the MORD released a notification making the app mandatory for all NREGA work sites with greater than 20 workers. Greater than 20 workers. उसके बाद He asked me to take nude हाँ उसके बाद Many states, shall I? yes many states Many states submitted the reports or complaints and errors, yet MORD did not offer any solutions, reassurances, or even a response. reassurances or even a response, ठीक है, उसके ऊपर का पॉइंट पढ़िए। There is no option of manual attendance except exceptional circumstances. So manual attendance का कोई चांस ही नहीं है उधर, पूरा हर चीज क्या कर दिया, डिजिटली कर दिए, ठीक है। Okay, sir. So let me, और कब स्टार्ट हुआ मनरेगा, when did this मनरेगा start? 2015 मनरेगा 2015 में स्टार्ट हुआ। No. वही कौन स्टार्ट करे आके, यूपीए में स्टार्ट हुआ या यूपीए में हुआ सर UPA. यूपीए में स्टार्ट हुआ 2005 में, कितना साल हो गया, 17 years. 17 years। तो स्क्रीन दिख रहा, तो मनरेगा के बारे में मालूम है आप लोगों को, नहीं मालूम है? Yes, sir. कुछ आइडिया है व्हाट इज मनरेगा? Mahatma 100 days employment. So let us see an animation part.
हिंदी में क्या लिखे हुआ है? भारत की आत्मा गाँव में बसती है। पहले से भारत की आत्मा गाँव में बसती है। गाँव में बसती है। भारत की आत्मा गाँव में बसती है, महात्मा गांधी नगर। चलो प्लीज see this, I'm muting myself. Please. इस धरती पर पानी जीवन की उत्पत्ति से भी पहले से था, लेकिन यह पानी सभी को आसानी से नहीं मिला। कुछ लोगों को पानी हासिल करने के लिए अपनी तकदीर बदलनी पड़ी है। आज जब देश के प्रमुख मेट्रो शहरों के माथे पर पानी के खत्म हो जाने की तिथियां लिखी जा रही हैं, तो भीषण जल संकट झेलने वाले कुछ ऐसे गांव और समाज भी हैं जो पानी से समृद्ध हो रहे हैं। दरअसल जल संकट वाले गांवों में पानी के समृद्धि की यह कहानी 2006 में शुरू हुई, जब महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून यानी मनरेगा की शुरुआत हुई। कोरोना महामारी के कठिन वक्त के बीच पानी की यह कहानी लाने के लिए डाउन टू अर्थ के 14 रिपोर्टर्स ने 15 राज्यों में करीब 16,000 किलोमीटर की यात्रा की है और संकट से समाधान तक की इस कहानी के खास हिस्से को बताने के लिए मैं हूं विवेक मिश्रा और आप देख रहे हैं डाउन टू अर्थ। सौ दिन का पक्का रोजगार देने वाला मनरेगा अपने 15 बरस पूरा कर चुका है और इस कानून का 60% काम जमीन और पानी को बचाने से जुड़ा है। इसी का नतीजा है 15 वर्षों में ग्रामीण भारत में जल से जुड़ी 3 करोड़ संपत्तियों का निर्माण किया गया है। यानी हर एक गांव में कम से कम 50 जल संरचनाएं बनाई गई हैं। सरकार के पास जल संरक्षण के कामों को जांचने का कोई तंत्र नहीं है, लेकिन दिल्ली स्थित थिंक टैंक सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट का विश्लेषण है कि बीते 15 वर्षों में मनरेगा के तहत इन संपत्तियों ने पानी का अतुल भंडार हमें तोहफे में दिया है। डाउन टू अर्थ की गणना के अनुसार पिछले 15 सालों में मनरेगा के तहत जो संरचनाएं बनाई गई हैं, उनसे लगभग 29,000 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी का बचाव संभव हो पाया है, जो कि राजस्थान की उदय सागर लेक को एक बार भरने के लिए पर्याप्त है। इसके अलावा लगभग 19 मिलियन हेक्टेयर जमीन की सिंचाई संभव हो पाई है। यदि हम प्रति हेक्टेयर 1.2 टन चावल का उत्पादन माने, तो इस जमीन पे 2 से 2.5 करोड़ टन का चावल उत्पादन संभव है। मनरेगा सिर्फ रोजगार का अवसर पैदा करने वाली योजना नहीं है, बल्कि ये गांव के संपूर्ण विकास वाली योजना है, जिसमें पानी को बचाने और सहेजने का बेहतरीन उद्देश्य शामिल है। ये देश का सबसे बड़ा पानी बचाने का कार्यक्रम है, जो हमारे भविष्य को बेहतर बना सकता है। भारत में मानसून को वित्त मंत्री का दर्जा हासिल है, जो कि हमारी अर्थव्यवस्था का जीवनदाता भी है। इसके बावजूद बड़े पैमाने पर हम हर साल वर्षा जल को बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि हमारे गांवों में इनके भंडारण और संचयन के लिए कोई खास व्यवस्था नहीं थी। मनरेगा ने देश में चौतरफा ऐसे गांवों में भी पानी की उम्मीद जगा दी है जो पानी के लिए तरस जाते थे। वर्ष 2006 में मनरेगा के पहले चरण में देश के जिन 16 जिलों को चुना गया था, उनमें बादलपल्ली भी था। अब 15 बरस बीत चुके हैं और सूखे की मार झेलने वाला यह जिला मनरेगा की बदौलत अपने लिए पानी बचाना सीख चुका है। यहाँ करीब 900 जल संचयन वाली संरचनाएं बनाई गई हैं। इससे न सिर्फ इन गांवों की भूजल उपलब्धता बढ़ी है, बल्कि लोगों की आय में भी बढ़ोतरी हुई है। हमें मालूम है कि कृषि के लिए कई किसान अब भी वर्षा जल पर निर्भर रहते हैं। ऐसे में एक अच्छा और बेकार मानसून खेती का भविष्य तय कर देता है। अंकुर भैया, I hated you when your ads kept on running over and over. गुजरात में साबरमती नदी के किनारे सबरकांठा जिले को मनरेगा के शुरुआती चरण में चुना गया था। वहां के लोगों ने मनरेगा के फंड से गांव में बड़े और छोटे तालाब, बांध, चेक डैम आदि बनाए। नतीजा यह हुआ कि अब वहां के किसान न सिर्फ बेहतर पानी से समृद्ध हैं, बल्कि ज्यादा फसलों का लाभ भी ले रहे हैं। मनरेगा के तहत सिर्फ जल संरक्षण के कार्य नहीं हुए, बल्कि इसने सामाजिक और प्राकृतिक आपदाओं के दंश को भी कम करने में बड़ी भूमिका निभाई है। मसलन उड़ीसा के बालांगीर जिले में 20 ब्लॉक में 6 ब्लॉक ऐसे हैं जहां बड़े पैमाने पर पलायन का दंश है। राज्य सरकार ने इसी वर्ष इन 6 ब्लॉक के लोगों को 100 के बजाय 300 दिन का पक्का रोजगार देने की घोषणा की है। उम्मीद है मनरेगा पलायन के इस दंश को कम करने में कारगर होगा। हालांकि 2021 में बालांगीर में 5000 खेत तालाब और बहुउद्देशीय टैंक बनाने का लक्ष्य भी रखा गया है।
इसी तरह मनरेगा ने सुनामी के दंश को भी कम करने में बड़ी भूमिका निभाई है। 2004 की सुनामी ने तमिलनाडु के नागापट्टिनम जिले को बर्बाद कर दिया था। 2006 में शुरू हुए मनरेगा ने इस जिले की समस्याओं को कम करने में बड़ी भूमिका निभाई है। कावेरी नदी किनारे बसे नागापट्टिनम जिले में सुनामी से पहले अच्छी खेती के लायक भूमि और जल था, लेकिन सुनामी ने यहाँ की मिट्टी और पानी को खारेपन से भर दिया। कई लोग खेती छोड़कर दुबई पलायन कर गए थे, लेकिन इस जिले में समुद्र से कुछ मीटर की दूरी पर 1900 परिवारों का गांव विल्लापलम है, जहां पर मनरेगा के फंड ने कायाकल्प कर दिया। वहां तालाब बनाए गए और उन तालाबों ने खारेपन को दूर करने में बड़ी मदद की। इतना ही नहीं, नारियल के खास किस्मों को लगाकर खारेपन से लड़ाई भी लड़ी गई। अब यहाँ हरियाली बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है। आपदाओं से इतर मनरेगा के तहत कुछ ऐसे भी काम हुए हैं जिस पर हम सबसे कम बात करते हैं। पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में पानी के संकट की वजह से पुरुष खेती छोड़ रहे थे, तो वहां की महिलाओं ने जल संकट की समस्या को दूर करने का बीड़ा उठा लिया और उनका सहारा बना मनरेगा। बांकुरा जिले के ही बीरबंद और कावतंगा गांव के जल संकट की स्थिति धीरे धीरे बदल गई और आज ये दोनों गांव खुशहाल हैं। दरअसल 1200 से 1300 मिलीमीटर की वर्षा होने के बावजूद भी इन दोनों गांव में पानी सतह पर नहीं टिकता था और जल संकट की स्थिति बनी रहती थी। दोनों आदिवासी गांवों को 2017-18 में ऊसर मुक्ति अभियान का साथ मिला और मनरेगा के फंड के सहारे यह अभियान राज्य के 6 सबसे सूखे जिलों के लिए चलाया गया। इन गांवों ने पानी रोकने के लिए संरचनाएं बनाकर बह जाने वाले वर्षा जल को रोकना शुरू कर दिया। अब यह गांव पानी के संकट से उबर रहे हैं। जिले के भूजल में भी सुधार हुआ है और पूरे जिले में अब तक 25 जल संरचनाएं बनाई गई हैं। मनरेगा और महिलाओं का गठजोड़ यही नहीं रुका, यह हमें केरल में भी दिखाई देता है। केरल के पालक्काड जिले में चावल की पैदावार खूब होती है, लेकिन भारतापुरा नदी की स्थिति बिगड़ने से वहां सिंचाई का संकट पैदा हो गया। पानी की उपलब्धता यहां सबसे बड़ी चुनौती बन गई। सालाना औसत 2300 मिलीमीटर वर्षा जल हासिल करने वाले इस जिले में कुल 56 गांव जल संकट के चपेट में आ गए, लेकिन 15 वर्ष पहले शुरू हुए मनरेगा ने यहाँ के कई इलाकों को फिर से पानीदार बना दिया है। नदी को पुनर्जीवित करने और जल संरचनाओं को बनाने में सबसे बड़ी भागीदारी यहाँ के महिलाओं ने निभाई है। पोकटकाव गांव में 200 कुएं खोदने का लक्ष्य रखा गया था और यहाँ की महिलाओं ने यह बागडोर संभाल ली। मनरेगा का यह काम देश के अन्य हिस्सों में भी है। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में जालौन जिला हो या मध्य प्रदेश का सीधी जिला, वहां के गांव भी जल से समृद्ध हो रहे हैं। हर तालाब और पोखर विकास का अहम औजार होता है। हमारे ग्राउंड रिपोर्ट बताते हैं कि मनरेगा ने ऐसे बहुत से औजार बना दिया है। जरूरत है कि सरकार जल बचाने के इन कामों का हिसाब किताब रखना शुरू करे ताकि उसका प्रभाव सही मायने में परखा जा सके। वर्ष 2006 में मनरेगा के तहत 16 जिलों को चुना गया था और उन जिलों में आज पानी के काम इतने अच्छे हुए हैं कि वहां स्थितियां बदलने लगी हैं और इन कहानियों ने हमें आज संकट से बाहर निकालकर समाधान की तरफ देखने को मजबूर कर दिया है। So what is NREGA? What is the single most important achievement of NREGA? Preserving water. Preserving water. And who are the most participants which can be attributed the success of NREGA? Male or female? Male or female? Female. Females, right? So कुछ आइडिया मिला नरेगा के बारे में? और क्या करते हैं नरेगा में? We create structures which conserve water. Ponds वही बनाते हैं. So you might have got a brief idea about this नरेगा. ठीक है? तो किसके कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आती है नरेगा ये? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो नया काम क्या करे लोग? अटेंडेंस के वास्ते लाए। अटेंडेंस से किसको परेशानी हो रही? वुमेन को मोस्टली। तो प्लीज रीड नेक्स्ट। No physical records. नो फिजिकल रिकॉर्ड। पूरे को ऑनलाइन कर दिए, तो ऑनलाइन बहुत ज्यादा मुश्किल है। पढ़िए। With no physical records, the workers do not have the proof of their work. The workers do not have the proof of their work. So what? This app was brought to bring transparency and plug leakage and eliminate corruption. But it proving more difficult than previously. इसे क्या है, बुक में रजिस्टर करना आसान था ये ऐप से। इसके बाद पढ़िए। There are no parameters to assess the app's parameters. This app's performance. App's parameters कुछ है ही नहीं उसमें। So last column. Strengthen social audits. Social audit are citizen-centric institutions. They should be strengthened. Panchayats have a direct role to see how NREGA functions in their areas. ये जो चीना है
गवर्नमेंट की एक आदत है, जो उन लोगों को समझ में आई वो सबको अच्छी है बोले ऐसा, जो लोग समझ में नहीं आई किसी को अच्छी नहीं है बोले ऐसा। ये गवर्नमेंट क्या है, डजंट टॉक विद द स्टेक होल्डर्स, इट जस्ट अप्लाइज। और अगर पायलट बेसिस पे करे तो भाई इसका जो प्रॉब्लम है वो क्लियर नहीं करते, इट जस्ट अप्लाइज एंड थिंक दैट अल्टीमेटली द पीपल विल, व्हाट यू कैन से, द पीपल विल what you can say, the people will adjust to the situation, ठीक है, but it is not like that. So समझ में आ रहा? Yes. तो sir. लास्ट में क्या है, what is the last conclusion? Conclusively, the NMMS is eroding the right to work that underwrites the NREGA Act. ठीक है, so क्या है, ये ज्यादातर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स था, उसमें एग्जांपल्स देके था, आई डिड नॉट टेक एनी एग्जांपल्स ऑफ। सो आइडिया हुआ क्या है ब्रीफ, दिस ऐप माइट कम, मेजरली क्या ऐप है और क्या है दिस ऐप मेक्स क्या है, कब क्या क्या होना जरूरी है उसमें। यू कैन राइट सम 150 वर्ड्स अबाउट दिस, लिख सकते हैं 50 वर्ड्स। So let us come to the news analysis. Please read. USA Supreme Court overturns abortion rights. So Supreme Court overturns abortion rights. Chief Justice John Roberts upheld a Mississippi law banning abortions after 15 weeks. So John Roberts, who is the Chief Justice who gave this judgment? John Roberts. John Roberts upheld a Mississippi law. Next. Women in USA have lost a fundamental constitutional protection. देखिए, normally these courts are considered as the protector of fundamental rights. Now this ये उल्टा हो गया USA में. The court has taken the fundamental rights from its citizens. ठीक है. Normally in USA there are some bigger factors which has come into existence. One is the abortion rights, conservatives versus liberals, and the gun control. It is very the gun control. How many of you have heard about shooting in USA? न्यूज पढ़ रहे जो कोई पागल आदमी आता जो मेंटली अनस्टेबल है जाता फायरिंग स्टार्ट कर देता और उसका बाद खुद भी गोली मार लेता उन्हें। तो उससे क्या हो गया, गन कंट्रोल लॉस। उधर क्या है, फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट है, ठीक है, राइट। गन रखना इंडिया में है, गन रख सकते हैं अपन? यस सर। इंडिया में गन रख सकते हैं? ओनली विद लाइसेंस। तो लाइसेंस नहीं है, लाइसेंस मिलना बोले तो लाइसेंस कहाँ मिलता? लाइसेंस मिलता आपको? लाइसेंस की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप वो खरीद के ला ले सकते, समझे उधर। सो इट हैज बिकम वेरी क्लियर। तो इंडिया में उतना आसान नहीं है लाइसेंस रखना। सो इन यूएसए द प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स has taken away the fundamental rights. Yeah, it's the what you can say, so इसका कंडीशन अलग जा रहा, ठीक है। नेक्स्ट। On Thursday, Supreme Court also rolled back restrictions in New York State on who may carry concealed guns in public. Who may carry the concealed gun in public. So उसके बाद एक लॉ भी पास हुआ जो which has overturned this, ठीक है। We will see in the next. तो समझ में आए ये अबॉर्शन राइट्स है, बहुत डिटेल में है। आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल, इंशाल्लाह अभी और आर्टिकल्स आते उसमें अपन बात करेंगे अबॉर्शन लॉस, ठीक है। these are the major problems in USA. जो यूएसए क्यों पढ़ रहे हैं अपन? यूएसए क्या बोलते हैं? व्हाट वी कॉल यूएसए एज? USA is the democracy. It is the
It is the oldest democracy. India is called as USA Largest is democracy. India is the largest democracy and the USA is the oldest Oldest. democracy. ठीक है, ये आर्टिकल आ जाए, we will read once again in detail. ठीक है, next. Death penalty in India. Death Supreme penalty Court in India. Supreme Court awards death sentence only in rarest of rare case doctrine, case law. Bachchan versus State of Punjab. तो इंडिया में जब कोर्ट्स क्या है सजा देते, फांसी की सजा देते, हर पहले क्या है, इट वाज ऑल कॉमन, बट इन द केस ऑफ बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, सुप्रीम कोर्ट gave a doctrine which is known as rarest of the rarest case. ठीक है, so one of the rarest case में जो अपना जो दिल्ली का गैंग रेप हुआ था, उसमें all the accused were given the, what you can say, the death penalty. बस एक पॉइंट है, केस लॉ याद रखिए, बच्चन वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. नेक्स्ट. Vaccines prevented 42 lakhs deaths in India. So how many of you are vaccinated now? Me. 2 doses, sir. 2 doses हो गए? Yes, sir. कितने महीने हो गए 2 doses हो गए? 5 months. 5 months. Once you are done with 6 months, you have to take the booster dose. बुखार आया एक दिन? No, sir. No, sir. जिस दिन डोज लिए? No, sir. नहीं आया बुखार? नहीं, sir. डोलो खा लिए? No, sir. नहीं खाए. आयुष ने बुखार? नहीं सर, आयुष नहीं. डोलो दिए थे उस्मान लेकर. पहले ही खा लिए सर डोलो. नहीं सर, हम तो खाए भी नहीं. चलो अच्छा है, बुखार नहीं आया. तो वैक्सीन प्रिवेंटेड 42 लाख डेथ इन इंडिया. अपना जो काउंट है, ऑफिशियल काउंट तो ये बता के भाई 4 लाख से ज्यादा नहीं मरे. अनऑफिशियल काउंट है एज पर यूएनओ 50 लाख मरे बोल के लोग. अगर वैक्सीनेशन नहीं होता था और कितने लोग मरते थे? और एक 50 लाख और एक 42 50 लाख. अपने क्या है, ये वैक्सीनेशन क्या है, आईसीयू में जाने से रोक देता, बस उतना ही. आईसीयू से दूर रखता अपने वैक्सीनेशन. और हर साल आपको एक बूस्टर डोज लेना पड़ता. हर 6 महीने को एक बार डॉक्टर के पास जाना, सुई चुबा लेके आना, अगर आपको सेफ रहना है. और डोंट से, और ये मत बोल हाउ मेनी ऑफ यू से कि भाई कोविड है नहीं बोल के. कौन ये अपने पास अपना क्या बोलते हैं, साइंटिफिक दिमाग इस्तेमाल करके बोलते हैं सिटीजनशिप, क्या बोलते हैं, एच नहीं वायरस बोल के. ये है अपने पास पढ़े लिखे जाएला होता है सर. ये अपने ग्रुप में है क्या, पूछो. ग्रुप में नहीं दिख रहा है. मालूम सर. कौन नहीं लिया अभी तक वैक्सीन, हो बोलो. नहीं लिए उन्होंने. कौन नहीं लिया वैक्सीन? ये वैक्सीन भी नहीं लिए थे उन्होंने. कोविड ही नहीं है बोल के बोलते थे उन्होंने. लास्ट ईयर में देखा लो. पकड़ा नहीं पकड़ा कोविड से? हाँ पकड़ लिया उनको कोविड. तो देखो, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. आप लोग आज जा रहे हो क्लासेस को, मास्क सैनिटाइजर लेके जा रहे हैं, ना जा रहे? जी सर. या मास्क खरीद रहे या जेब में रख रहे, स्पेशली बॉयज? लेके जा रहे सर, लगा रहे ना कोई. भाई अपनी सुरक्षा खुद करो, बाद में अच्छे थे बोल के बोलते लोग. वो आवाज मत ला लो, ठीक है. नेक्स्ट पढ़ो. Study published in Lancet Infectious Disease. स्टडी ये क्या, कहाँ पब्लिश हुआ? Lancet. Lancet is one of the most authenticated medical journals. Next please. Blasphemy law in Indonesia. Blasphemy law in Indonesia. So क्या है इंडोनेशिया में? It is a crime that causes a maximum sentence of 5 years in prison. Okay, so blasphemy law in Indonesia, it is a crime that carries a maximum sentence of
5 years in prison. समझ में आ रहा? सो ये क्या है, एक लॉ हुआ था जो आपको न्यूज अगर पढ़े तो नेम विथ मोहम्मद एंड मारिया, ये अगर नामा ये है तो दे वर गेटिंग सम अल्कोहल, जिन सर। जिन। सो उसके बाद में क्या बोलते हैं, एंड द कंपनी वाज फोर्स्ड टू अपोलोजाइज एंड द कंपनी अपोलोजाइज फॉर दैट स्कीम। ठीक है, तो मैं वो नहीं लिया, कंट्रोवर्सी नहीं लिया, आई जस्ट सेड कि भाई कितना साल कितनी सजा है उधर। हाँ सर। इट इज अ क्राइम दैट कैरीज मैक्सिमम सेंटेंस ऑफ 5 years इन प्रिजन, ब्लास्फेमी लॉ। ठीक है, कंट्रोवर्शियल चीजें नहीं आती, खाली आपको लॉ देख लेना है, बस रख देना है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़िए। US passes gun safety legislation. US passes gun safety legislation. पढ़िए। House of Representatives, first time in 3 decades. So House of Representatives, उधर की लोकसभा पास करे, कितने वोट से? 243. 234 is to 193. 234 is to 193. 193. कितने फेवर में पास करे? 234. 234 कितने अगेंस्ट है? 193. 193। ठीक है, सो उसके बाद बोलिए। Senate 65 is to 33. 65 is to 33. 33 माने क्या है? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव माने उधर का लोकसभा है, सेनेट इज सेनेट उधर का राज्यसभा है। राज्यसभा में कितना है इन फेवर? 65. 65 इन अगेंस्ट 33. 33। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। No Democrat opposed it. No Democrats opposed it. There are two. One is Democrat, one is Republicans. इसमें no Democrat has opposed it. ठीक है, next. It is a rarest defeat of US gun manufacturers and the National Rifle Association. So it is a rare defeat. देखिए उधर सबसे ज्यादा पैसा जो बनाते ना वो क्या है? गन बनाने वाले, गन मैन्युफैक्चरर्स बनाते, और सबसे ज्यादा नुकसान किसका होने वाला है? गन मैन्युफैक्चरर्स का ही होने वाला है। ठीक है, तो अगर आप जी सर इसमें एक 10-15 रिपब्लिकन्स भी फेवर में वोट करे, माने रिपब्लिकन ही है ना। अब फेवर में कौन है? देखिए who is फेवर in में the government now? डेमोक्रेट्स है। ना who is in डेमोक्रेट the government? ठीक है, मैं I have not included everything. I have just included which are very important. नहीं News सर, व्हाट article माय बड़ा क्वेश्चन, है। हाँ व्हाट माय क्वेश्चन इज जस्ट लाइक इन इंडिया देयर इज अ व्हिप कि इफ वी वोट अगेंस्ट द व्हिप वी विल बी डिस्क्वालिफाइड, तो वैसा प्रोविजन नहीं है यूएस में सर। देखो इंडिया इज ए क्वासी डेमोक्रेसी है। हाँ इंडिया इज नॉट ए ट्रू डेमोक्रेसी, कंप्लीट डेमोक्रेसी नहीं है इंडिया में। ओके इंडिया अबव डेमोक्रेसी है, यूएसए की मैच्योर डेमोक्रेसी है। उधर का विप नहीं है, उधर विप नहीं रहता, अपने पार्टी में रह के ही वो लोग अगेंस्ट भी डाल सकते वोट। हाँ वही पूछ रहा हूँ सर। प्रॉब्लम नहीं होती कुछ भी। ओके उसको क्या बोलते हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ या ये लॉ वो लॉ नहीं लगाते। देयर इज नो विप देयर, बिकॉज डेमोक्रेसी माने क्या है? एवरीवन कैन पुट देयर ओन वॉइस। कल के एडिटोरियल में क्या पढ़े थे अपन? डेमोक्रेसी माने एवरीवन हैज देयर ओन वॉइस without getting what you can say, without getting offensive or without becoming enemies. You can put up your words, you can put up your thoughts. इंडिया में ये क्या है? इंडिया में क्वासी डेमोक्रेसी हो गई और कुछ भी नहीं। अगर आप अलग डाले तो आपको निकाल देते अपने पार्टी से 6 साल के वास्ते। तो इंडिया में विप सिस्टम है, यूएसए में विप सिस्टम नहीं है। You can give your conscience vote. ठीक है, समझ में आ रहा? इधर में आप पार्टी के अगेंस्ट नहीं जा सकते, उधर पार्टी के अगेंस्ट जाके क्रॉस वोटिंग करते, बट दे वोंट बी डिस्क्वालिफाइड।
Clear? Yes. Next please. CAR safety scheme. कार सेफ्टी स्कीम। क्या है कार सेफ्टी स्कीम? किसके पास कार्स है इधर? कार है नहीं है घर में? हाँ सर। अच्छा अपने पास जो अपने इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है अपने पास? फ्रिज है? हाँ सर है। फ्रिज के ऊपर कितने स्टार लगे हुए हैं? 3 स्टार का फ्रिज है, 4 स्टार का फ्रिज है, 5 स्टार का? 3 स्टार। 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार। सिमिलरली रेटिंग वैसी ही रेटिंग आप कार्स पे भी आने वाली है बेस्ड ऑन सेफ्टी। प्लीज रीड। India will have its own crash-linked safety performance star rating system for cars. Car rating system for cars. How many of you have seen car accident? कभी कार एक्सीडेंट देखे? Yes, sir. So इंडिया में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, जब आप कार खरीदने जाते ना, उन्हें ऑप्शन देता सर ये अगर आपको कार जो सेफ्टी बैलून्स आते, सेफ्टी क्या बोलते हैं उसको? एयरबैग जो आते ना, अगर एयरबैग के साथ ले रहे तो इतना प्राइस है, एयरबैग के साथ ले रहे तो इतना कम प्राइस हो जाता, विथ एयरबैग्स विदाउट एयरबैग्स। और अपन तो 1-1 रुपया भी देखते, विदाउट एयरबैग्स इतने पैसे कम हो रहे, 1000 रुपए, 2000 रुपए, 10,000 रुपए कम हो रहे। समझो क्या करते हैं, विदाउट एयरबैग दे दो बोलते। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हुआ और एयरबैग नहीं है आपकी गाड़ी में, डायरेक्ट ऊपर जाते, डायरेक्ट ऊपर गए तो ठीक है, लेकिन अगर इंजर्ड हो गए और खतरनाक हो जाती हालत थी। तो इंडिया में बहुत बुरी आदत है ये एयरबैग्स की। हर कंपनी एयरबैग्स लगा के ही देना। देयर शुड बी नो नेगोशिएशन, देयर शुड बी नो सेल ऑफ कार विदाउट द एयरबैग्स। ठीक है, नेक्स्ट पढ़िए। 5-star rating system under Bharat NCAP. 5-star rating system भारत NCAP। इसके बाद पढ़िए। Based on performance of cars crash test. सो क्रैश हो गया बाद में कितना नुकसान होता कार को, उसके बेस पे आपको रेटिंग देंगे। नेक्स्ट। Test at higher crash test speed of 64 km/h with 56 km/h for type rating. माने बेसिक कब से स्टार्ट होगा? 56 किलोमीटर फॉर टाइप रेटिंग। और हाईएस्ट क्रैश टेस्ट कब होता? कौन से किलोमीटर पे होता? 64 मीटर पे लोग टेस्ट करेंगे पर आवर पे। व्हाट आर द डिफरेंट कैटेगरीज? Adult, child, occupant, production, safety assist technology. So one is adult, उसमें one is adult, खाली पूरे adults बैठे हुए थे क्या है? फिर child, occupant, protection है वो, ठीक है। और उसके बाद में क्या है? Safety assistant technology, ठीक है। समझ में आए? So this will come, ये पक्का आने वाला है because it affects us personally, ठीक है। Next। सर 6 एयरबैग्स कंपलसरी हो गए ना सर कार्स में? अभी अब परसों जो अपने जो बीजेपी गवर्नमेंट आई, उसके बाद में नितिन गडकरी came to became the MOHD मिनिस्ट्री ऑफ दिस, उन्हें आके कंपलसरी करा रोड एंड ट्रांसपोर्ट। यस सर, उन्हें आके कंपलसरी करा, लेकिन उससे पहले कंपलसरी नहीं थे, पैसे कम हो जाते थे। क्या सर, क्या कंपलसरी करे? द एयरबैग्स कार खरीदने जा रहे तो पहले इट वाज व्हाट यू कैन से इट वाज वॉलंटरी, लेना है तो लियो, नहीं तो नहीं। बट व्हेन द नितिन गडकरी came to when the BJP came to power and Nitin Gadkari became the minister, he made it mandatory, खरीदना है कैसा। इसके बाद पढ़िए। Parameshwaran Iyer, new CEO of Niti Aayog. New CEO of Niti Aayog. Next, Parameshwaran Iyer. Next पढ़िए। He has implemented the Swachh Bharat Abhiyan. So he implemented the Swachh Bharat अभियान। कितना चल रहा स्वच्छ भारत अभियान? चल रहा अपने पास? हरितहारम चल रहा है, चल रहा सर। सेस तो ले रहे हैं सर। नहीं, अपने घर में कितना स्वच्छ भारत चल रहा? रोज चल रहा सर। अपने गली में कितना स्वच्छ भारत चल रहा? 0 सर। हफ्ते में एक बार हो रहा। नेगेटिव चल रहा। अपने कॉलोनी में कितना स्वच्छ भारत चल रहा?
ऐसे रोड़ा तोड़ दे न्यू सिटी में चलता सर, ओल्ड सिटी में पूरी 1 नाइट ले लेते हैं। But I was in the morning. I was going to the school. 7:30 7:15 को जाता मैं स्कूल को। वे अपने एरिया में इतना कचरा कहीं को रहता, समझ में नहीं आता। I start from 7:30. आधा घंटा मेरे को ओल्ड सिटी के थ्रू ही जाना रहता, उसके बाद में आई कम टू द न्यू सिटी। वही टाइम पे न्यू सिटी में इतना साफ रहता और अपनी ओल्ड सिटी में इतना खराब कहीं रहता। आई डोंट अंडरस्टैंड, मेरे को समझ के बाहर है। अपने पास सबसे जल्दी उठते, फजर में उठते, सबसे पहले काम अपने हो जाना। नॉन मुस्लिम्स अडॉप्ट कर रहे सर सारे मुस्लिम्स के कल्चर। अपन क्यों छोड़ दे रहे भाई? अपनी दुकान 11 बजे खुलती, नॉन मुस्लिम की द्वारा 6:30 7 बजे खुले भी है। But it is puzzling, 11 11:30 खुलने वाले। अरे भाई, I couldn't understand this concept. रात में लेट सोते, लेट उठते। तो भाई, I don't know. सिटी ऑफ नवाब से सर, वो सब बेकार बातें हैं, मारा खा रहे इस वास्ते। नवाब बोलते ही लोग मार रहे हैं आजकल। नेक्स्ट पढ़िए। His name was cleared by Cabinet Committee on Appointments. Next. He will get minimum 2 years. He will get minimum 2 years to work as a CEO. Next. He will succeed the Amitabh Kant. He will succeed Amitabh Kant. So who is he? Next point. He is a 1981 IAS batch officer and UP cadre. On UP cadre. In UP cadre. In UP cadre. समझ में आ गया? And he's also worked at UNO. UNO and professor at IIM Ahmedabad. IIM Ahmedabad। एक 20 से 25 पढ़ा लिख ले सकते। ये क्या नाम है अपना, परमेश्वरा रायन के बारे में। परमेश्वरन अय्यर। हाँ, IAS ऑफिसर है, इम्प्लीमेंटेड स्वच्छ भारत अभियान। He worked in UNO. He worked in different ministries. His name was cleared by Cabinet Committee on Appointments. He'll get 2 years. CEO of Niti Aayog. Now presently is the CEO of Niti Aayog. ठीक है। उसके बाद और एक अपॉइंटमेंट हुआ, Tapan देखा। The appointment committee of the cabinet. हेलो। हाँ सर, ये नीति आयोग प्लानिंग कमीशन के बदल में आया है, तो है ना सर? सीईओ वर्ड क्या कर रहा है सर? ये क्या बोले? सीईओ वर्ड क्यों आया नीति आयोग में, बोल रहा हूँ सर। उधर पोस्ट बना है ना, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। हाँ सर, तो इसको डायरेक्टर मैनेजर सब है क्या सर? ये इट्स लाइक ए आपको कंपनी चेयरमैन है, इसमें आपको चेयरमैन है जी, उसके बाद वाइस चेयरमैन है, उसके बाद में सेक्रेटरी कम सीईओ। अच्छा सर। सेक्रेटरी ये क्या है? बिकॉज द मोदी इज वेरी टेक सेवी एंड बिजनेस ओरिएंटेड, प्रो ओरिएंटेड। आपको एक प्रॉपर कमर्शियल कंपनी में क्या रहता? हाँ सर, हाँ। he is of less bureaucratic person and more of commercial oriented. आपको ये सीईओ क्या है, प्राइवेट कंपनी से मिलते हैं। जी सर, हाँ वही डाउट आया। So he said business is not the business of the government. लेकिन जो भी कर रहे हैं बिजनेस के ऐसे ही करेंगे। अच्छा। एकदम मॉडर्न, प्रॉफिट ओरिएंटेड मॉडल्स, नो टाइम वेस्ट। ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट। The appointments committee of the cabinet appointed Tapan Kumar Deka as this in raw. पढ़िए। 1988 IPS officer, Himachal Pradesh cadre. Next. Will be director of RANW for 2 years till June 2024. Research and analysis wing.
Research and Okay. analysis wing. Analysis Wing ये क्या for है? 2 years till June 2024. So research and analysis wing was constituted. It is a intelligence bureau. It is like a intelligence, जो भी अपने को intelligence आते ना inputs, इंडिया की रिसर्च यही इसी में रहती। अपने ये देखे अपना क्या नाम है अमेज़न सीरीज पे श्रीकांत द फैमिली मैन ये सीरीज देखे ना देखे? देखे सर। उन्हें किसमें काम करता? उन्हें रॉ के अंदर और एक सब सीक्रेट सीरीज है, सब सीक्रेट ऑर्गन है सर वो। उसमें और क्या है इंटेलिजेंस का जो है ना, ही इज अ इंटेलिजेंस में रहते लोग पूरे इंडिया में क्या खुफिया होने वाला है इनको मालूम रहता। ठीक है, ये कब बनाए थे क्या है? इट्स लाइक इट हैज टू बी, इट इज अ इट वाज क्रिएटेड ड्यूरिंग इंदिरा गांधी टाइम। ठीक है, तो अगर आप मालूम करो इसके बारे में और कुछ, इट इज वन ऑफ द मोस्ट स्पाई सिस्टम, इंडिया का स्पाई सिस्टम है ये। सर जी बोलो। रॉ में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं है ना? नहीं, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कैसा होता रॉ में? रॉ में क्या है, एकदम क्या है, पूरा आपको अपनी काबिलियत अपनी इंटेग्रिटी प्रूव करे बाद में जाना पड़ता आपकी। यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर द ट्रू पैट्रियट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होता रॉ में। ओके सर। आपको आईपीएस ऑफिसर के साथ सर्व करना पड़ता और अपने को प्रूव करना पड़ता। और ये अपना ये सलमान खान का पिक्चर क्या है? एक था टाइगर सर। देखिए एक था टाइगर। हाँ सर। साइलेंस। क्या है एक था टाइगर की स्टोरी? रॉ एजेंट रहता सर उन्हें। रॉ एजेंट रहता। रॉ एजेंट, एक मिनट, क्या फिल्म लगा रहे क्या सर? एक मिनट की फिल्म दिखाएंगे आप लोग। दिख रहा? You want to see the screen? Yes sir. So what is RNAW raw? दोनों डिफरेंस सर नोट्स में Research and RANW Analysis Wing is the external intelligence agency of India. RAW, which stands out for Research and Analysis Wing, is the external intelligence agency of India. RAW's primary function is gathering foreign information, counter-terrorism, counter-proliferation, advising Indian policy makers, etc. RAW was formed on the 21st of September 1968 by Indira Gandhi, the former Prime Minister of India, and Rameshwar Nath Rao, India's spymaster gentleman for protection against foreign threats. When did RAW came into existence? 1968. 21st September 1968. By whom? Indira Gandhi. And who was the first? Who played an instrumental role in setting this up? Rameshwar Nath Rao. Rameshwar Nath Rao. गलत आया हूँ। Its headquarters is in New Delhi. New Delhi. And current chief is, who is the current chief now? Saman Goel. अब current chief कौन है? अभी Saman पढ़े। Goel. Goel was retired just now. तपन देरा सर। तपन
Deka. 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 So, ठीक है. Raw does not take. Your answer for that question. Raw does not take direct recruitment. Raw's current headquarters is in CGO Complex, New Delhi. Raw's current chief is Samant Goyal. Today is Raw's 53rd birthday. Raw does not take direct recruitment. समझ में आ गया? What is raw? एक और एक raw है WWE का. Research and analysis. Smackdown भी है सर. WWE देखते हैं तो देखते हैं wrestling. Yes sir. तो raw भी है. ये रॉ भी है, वो रॉ भी, ये रॉक भी है. रॉक भी है सर, सही है. तो इसमें सेक्रेटरी कौन है और ये कब तक रहेगा इन्हें? Samant Kumar Goyal got a 1-year extension. नहीं, अब तपन देखा कब तक रहेंगे? 2024. 24 2 साल का टेन्योर है. तो सेक्रेटरी कौन है? Samant Kumar Goyal. समन कुमार गोयल, जिसको अभी 1 साल का और एक एक्सटेंशन मिला. ठीक है. और ये जो दिस पर्सन परमेश्वर अय्यर हैज रिप्लेस्ड whom? Amitabh Kant. Amitabh Kant, he got 3 extensions. Amitabh Kant got 3 extensions 2 साल के बाद. ठीक है. So he was very very close to नरेंद्र मोदी. नेक्स्ट पढ़िए. Jurassic era fossil wood. Jurassic era fossil wood. कहाँ है ये? OU गए कैंपस? Yes, sir. देखे जुरासिक एरा फॉसिल वुड? यस, जियोलॉजी सेंटर. जियोलॉजी का उसमें दिखने में कैसा दिखता है? पत्थर दिखता, बट वो लकड़ी है. नेक्स्ट पढ़िए. 175 million year old, belonging to the Jurassic sediments of Pranahita Godavari Basin. प्रणहिता गोदावरी बेसिन. उसके बाद From wood they changed to ignite bituminous anthracite. तो लिग्नाइट ये पढ़िए, ये साइड का पढ़िए फिर नीचे आइए. It is a fossil coniferous wood of conifer wood of extinct species. अब वो लकड़ी नहीं मिल रही. नेक्स्ट. उसका क्या नाम है? साइंटिफिक नाम दे रहा हूँ यूपीएससी और टीएसपीएससी में. इट इज आइडिया ऑफ गिविंग द क्या बोलते हैं साइंटिफिक नेम एंड आस्किंग यू टू आइडेंटिफाई द नॉर्मल नेम. क्या नाम है? Araucarioxydon arizonicum. Next. Can only be found in the coal belt. Can only be found in the cold belt. इंडिया में क्या है? ये जो छोटा नागपुर प्लेटू है, पूरा ईस्टर्न पार्ट ऑफ आवर इंडिया, where it is rich in minerals, we'll find that. अब ये क्या बन जाता? पहले तो it is a plant, then it becomes wood. उसके बाद में क्या बनता? कोल. कितना? पहले 75% कोल बनता. 75% कोल माने लिग्नाइट. फिर उसके बाद में और 1000 साल के बाद बिटुमिनस. कितना बाइटुमिनस में कितना कोल है? 85%. तो कोल 95% है तो क्या बोलते हैं? जितना नीचे रहेगा, जितना प्रेशर में रहेगा, उतना बायोलॉजिकल रिएक्शन होगा, उतना प्योर कोल मिलता. और कोल हद से ज्यादा प्योर हो गया तो बन जाता डायमंड. ठीक है. नेक्स्ट. Due to biological reaction on the banks of Godavari, wood got transformed into rock. So naturally, कुदरती तौर पे ही this wood has got transformed into rock. ठीक है. So last news item for today. Bonalu Seva. बोनालू सेवा क्या है? Telangana Endowment Department and Telangana Postal Circle. So दोनों मिलके ये सेवा स्टार्ट करे. तेलंगाना एंडोमेंट डिपार्टमेंट प्लस तेलंगाना पोस्टल सर्कल. इसके बाद Devotees can book services for Kalyanam, fees ranging from rupees 300 to 500.
300 to 500. So फेस्टिवल आ रहा है लोगों का. I did not go into details. I just wanted to know कि वैसे अगर आपको एग्जाम में आया तो ये पूछता व्हाट इज बोनालू. बोनालू इज अ फेस्टिवल ऑफ तेलंगाना. तेलंगाना. क्या करते हैं इसमें? कोई व्हाट गॉडेस इज प्रेयर इज क्या बोलते हैं, कौन सी गॉडेस Worship. Goddess महाकाली sir. गॉडेस महाकाली. सो न्यूज़ आइटम में है. I didn't have the time nor I felt it was important. So I just said कि बोनालू सेवा कौन कौन दे रहे. तेलंगाना एंडोमेंट डिपार्टमेंट प्लस तेलंगाना Postal sir. सर्किल. It is also called the Festival of Flowers. Bonalu is called festival of flowers or No, Batkama is called festival of flowers. Batkama is called festival of flowers, not Bonalu. Oh, sorry, sir. Sorry. Okay. So by this I complete today's newspaper analysis plus editorials. ठीक है. जी. So shall we conclude a day? जी सर, रिकॉर्डिंग्स नहीं आ रहे ना सर यूट्यूब पे, थोड़ा रिवीजन करने के लिए. Okay, sir. भाई उसमें डिस्टरबेंस आ रहा बोल के मैं खुद अपलोड नहीं कर रहा हूँ. दैट इज अ प्रॉब्लम. I'll upload this. अभी अपलोड हो गया बंदा. I'll upload. ठीक है Sir वो